Hello, student. I hope you all are fine at home, right? Today we are going to discuss about for prevent hypertension yogic asanas, right? Procedure benefits and contraindications for Tadasana, Vajrasana, Pavan Muktasana, Ardha Chakrasana, Bhujangasana, and then Savasana. Now, in this slide, we can see about hypertension. Simply, we will see. Hypertension means increased blood pressure. It has become a worldwide health problem because a great number of people are facing the problem of hypertension throughout the world. Hypertension used to be considered a middle age problem, but nowadays youngsters also suffer from this problem due to their faulty lifestyle. Okay? Now we'll see how we can prevent hypertension through the yogic asanas. Okay, what are the asanas we can perform for prevent hypertension? We'll see now. Tadasana. In this picture, you can see how she is performing, and you can learn how we have to perform, right? Next, Tadasana benefits and contraindications. For procedure, I will give some link in the description box. From there, you can see how you have to perform these asanas. Okay, here we will see only benefits and contraindications. It is helpful in developing physical and mental balance. It reduces obesity. Obesity reduce करने में मदद करता है. It cures constipation. It cures digestive problems. It improves body posture. It enhances height. It is beneficial in treating hypertension. It stretches whole body. सॉरी, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है स्ट्रेच में. ठीक है, तो तुम लोग करेक्ट करके लिख लोगे. नाउ विल सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस. इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट डू दिस आसना. ओके, जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है उन लोगों को ये आसनस नहीं करना चाहिए. इन केस ऑफ हेड एक्स और इंसोमिनिया you should avoid doing this asana. Individuals who suffer from blood circulation problems such as faulty valves should not perform this asana, right? Students, जब तुम लोग कोई भी आसनस परफॉर्म करने जाओगे, प्रैक्टिस करने जाओगे, पहले तुम लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख के जाना, क्योंकि कोई भी आसनस हो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बहुत सारा ये होता है कि किसी का लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का है ये आसनस नहीं करना चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों का है ये आसनस नहीं करना चाहिए. हो सकता है हम लोगों का भी किसी का लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या बैक पेन हो सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो जब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग को ये आसनस करना है कि नहीं. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है. पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो. नाउ वज्रासना. Okay, already we discussed in the previous class. Again we will not see today. Pavan Muktasana also we done. Ardha Chakrasana. Okay, in this picture you can see how she is performing and you can learn how you have to perform, right? Now Ardha Chakrasana benefits and contraindications. It helps to make ankles, thigh, shoulders, chest, spine and abdomen stronger. It relieves stress and tension. It improves digestion. Okay, digestion improve होता है system. It cures menstrual disorder.
मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम, ये आसनास ठीक करता है. इट क्योर्स पेन इन लेग्स. इट रिड्यूसेस फैट इन द वेस्ट एंड थाई. ठीक है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस अपर बैक पेन. अपर बैक पेन रिड्यूस करने में मदद करता है अर्धचक्रासन. नाउ विल सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस. Avoid performing this asana if you have migraine, headache, low blood pressure, डायरिया एंड इंसोमिनिया. जिन लोगों का माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, डायरिया एंड इंसोमिनिया ये सब है, उन लोगों को ये आसना नहीं करना चाहिए. अवॉइड डूइंग दिस आसना इफ़ यू हैव पेप्टिक अल्सर एंड हार्निया. अवॉइड दिस आसना इन केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम्स. हिप में कोई प्रॉब्लम हो तो या स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों को, ये आसनस अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसना. देन भुजंगासना ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. नेक्स्ट savasana. Okay student, savasana is one of the relaxation asana. Savasana and sukhasana, these two asana is type of relaxation asana. Okay, एग्जाम में तुम लोगों को आ सकता है कि which one is the relaxation asana. उसमें ऑप्शन दे सकता है कि ऐसे ऐसे ऐसे. उसमें सवासना हो सकता है, नहीं तो सुखासना भी हो सकता है. उसमें से कोई एक ही देगा. जैसे कि तारासना हो गया, पवन मुक्तासना हो गया, अर्धमचंडासना हो गया और सवासना. उसमें से तुम लोग को क्या लिखना है? सवासना. सवासना इज द वन ऑफ द रिलैक्सेशन आसना. बेनिफिट्स ऑफ सवासना. इट स्ट्रेंथन्स द नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है. इट कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है. रिलीव्स मेंटल टेंशन. gives new vigor to both mind and body simultaneously. Regulates blood circulation and gives relief in various aches and pain. Cures many psychosomatic problems. Psychosomatic means same like mental problems. Helps to cure many cardiac problems. Okay. हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये आसनस भी. इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी. मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है ये आसना. रिलैक्सेस एंड काम्स द कंप्लीट बॉडी. ठीक है, होल बॉडी, पूरे बॉडी के लिए ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. टुडे वी डिस्कस्ड फॉर प्रिवेंट हाइपरटेंशन योगिक आसनस and benefits and contraindications of Tarasana, Vajrasana. Vajrasana and Pavan Muktasana already we discussed. Ardhachakrasana, Bhujangasana also we discussed in the previous class. Savasana. Okay. Today we finished the unit 3, right? Okay, students. तुम लोगों को ये सिर्फ एग्ज़ाम में लिखने के लिए या एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए ये सब नहीं दे रहा है. ठीक है, सिलेबस में यू शुड परफॉर्म एवरी मॉर्निंग, यू शुड परफॉर्म एवरी डे. ठीक है, तभी तो हम लोग को पता है अभी क्या क्या हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू योगिक आसना. ठीक है, हम लोग जानबूझ के नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए बुरा होगा. हम लोगों को पता है ना अभी क्या क्या करने से ये सब हाइपरटेंशन रिड्यूस होता है, हाइपरटेंशन प्रिवेंट होता है, या ओबेसिटी प्रिवेंट होता है, अस्थमा प्रिवेंट होता है. ठीक है. सो हम लोगों को ये परफॉर्म करना है, तभी तो हम लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. we'll meet again in the next class. Today we finished unit 3. Okay, bye bye.